Assalamu alaikum dear students. It is lecture number 3 of History Geo. Today I am going to discuss chapter number 1 of History. Before that we have done chapter number 2 of Geography. Okay, one more thing which I have to mention here is that according to planner it is lecture number 2 because planner से पहले भी Geography के 2 lectures हुए हैं, लेकिन planner की काउंटिंग के मुताबिक जो है ये हमारा lecture number 2 है. Okay, let's talk about our today's topic, and the topic is Indus Valley Civilization. And in this chapter number 1, the topics which we will discuss are number 1, introduction of Indus Valley Civilization. Number 2, relations with other civilizations, religious and social beliefs. Number 3, agricultural and trade of Indus Valley Civilization. And number 4, town planning. वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग से रिलेटेड है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली. Indus Valley is a valley where river Indus flows, and civilization means a state of human society. It means Indus Valley उस वैली को कहते हैं जहां पर रिवर इंडस या दरियाए सिंध फ्लो करता है, और सिविलाइजेशन का मतलब ऐसी जगह जहां ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं या जहां लोग रहते हैं. इस चैप्टर को हम इंडस वैली के बारे में ही पढ़ेंगे. अब इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज डिस्कस हुई है वो है हिस्ट्री और उसकी डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस. सो लेट्स स्टार्ट. History is such an organized study of past in which it examines the results and effects of the events of past nations. Past, present, and future are linked like a string. We obtained information about food, dress, living, professions, buildings, rise and fall, and destruction of nations. Okay, इसमें से कुछ लाइन्स मैंने स्टडी की हैं. इट मीन्स कि हिस्ट्री को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारी कौमों का या नेशंस का और हमारे लोगों यानी हमारे आबाओ-अजदाद का पास्ट कैसा था. मीन्स वो कैसे रहते थे, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लिविंग स्टाइल और लैंग्वेजेस कैसी थी, और उनके दूसरी कौमों के साथ बिहेवियर्स और रिलेशंस कैसे थे. सेकेंड थिंग इज दैट कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक स्ट्रिंग या धागे की तरह जुड़े हुए होते हैं. मीन्स ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में इनका लिंक होता है. और ये भी कहा जा सकता है कि इंसान अगर अपने पास्ट को स्टडी कर ले तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बेहतर बना सकता है. क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के नॉलेज से इंसान माजी में की गई मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करता, बल्कि उनसे सीखकर वो फ्यूचर में बेहतर फैसले करता है. इस तरह इंसान मुख्तलिफ सिचुएशंस में बेहतर डिसीजंस करने के काबिल बन जाता है. And the study of history provides us comprehensive knowledge about historical heritage and values of nations. Now let's talk about Indus Valley civilization. It is one of the oldest civilization, and I'm going to read it. Indus Valley is one of the oldest civilization of the world. This region where the civilization was developed had been irrigated mainly by river Indus and its tributary rivers. About 1500 additional settlements and signs of the civilization have been discovered in Pakistan and Western India. मीन्स ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है जिसके बारे में लोगों को पता है. इससे पहले जो प्रीवियस सिविलाइजेशंस हैं उनके बारे में हमारे पास कोई प्रॉपर रिटन हिस्ट्री मौजूद नहीं है. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि इंडस वैली जो है वो उसको इंडस रिवर इरिगेट करता है, यानी कि वहां पर इंडस रिवर फ्लो करता है. और इसकी अब हम आगे से इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर जो इसकी हिस्ट्री है उसको मेनली 3 टाइम पीरियड या इराज या एजेस में डिवाइड किया गया है. और नंबर 1 है प्राइमरी पीरियड, नंबर 2 मिडल पीरियड एंड नंबर 3 लास्ट पीरियड. During the primary period,
Urban life made a great progress. The art of handicraft flourished. In the Middle Period, this civilization progressed well. Many new cities and villages were established. In the end of Third Period, the Indus Valley civilization was inclined towards downfall. During the primary period, urban life made a great progress. इसका मतलब ये है कि इस वक्त शहरी जिंदगी ने जो है मतलब अगर हम बात करें प्राइमरी पीरियड की तो उस वक्त शहरी जिंदगी का आगाज हुआ था वो उसकी बिगनिंग थी और लोगों ने तरक्की करना शुरू की थी और आहिस्ता आहिस्ता सिटीज जो थे वो डेवलप हो रहे थे और इन लोगों ने प्रोग्रेस करना शुरू की। इनके आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो भी फेमस होना शुरू हुए। ठीक, तो ये तो बात ही प्राइमरी पीरियड की। मिडिल पीरियड जो है इसमें सिविलाइजेशन का पीक टाइम था। मींस इस एरा में इन लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी और अपनी ट्रेड और सोशल सिस्टम को भी डेवलप कर लिया था। अब बात करते हैं लास्ट पीरियड की। तो लास्ट पीरियड में सिविलाइजेशन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने जो है खत्म होने लगी थी ये सिविलाइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदारो की। सो देयर वर टू इम्पोर्टेंट सिटीज, मेनली जो दो इम्पोर्टेंट सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, एक था मोहनजोदारो और दूसरा हड़प्पा। पहले बात करते हैं मोहनजोदारो की। इट इज एन एंशिएंट सिटी situated in district Larkana, Sindh. This city was the most important center of Indus Valley. Indus River flows on its eastern parts. The signs of Indus Valley civilization were first discovered in 1922 in Mohenjo-daro during excavation of land. The thing which have been found here are जो चीजें यहाँ से मिली थी are ornaments, clay, bronze, utensils, seals, cards, boats, toys, statues, spindles, and skeletons of different animals. Bangles and beads of red clay are discovered from here, which had been worn by ladies and children. Along with that, precious gems, oyster shell made ornaments has also been used there. अच्छा, इंडस वैली की अगर हम बात करें तो इसमें मतलब इस मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मेनली तो दो ही सिटीज थे जो डिस्कवर हुए थे, लेकिन 1500 मोर जो थी जगह और ऐसी थी जो कि जहाँ से इनके रियून्स और इनके इनसे रिलेटेड चीजें मिली थी। लेकिन काबिल जिक्र अगर हम बात करें तो ये दो सिटीज ही थे। सो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके जो साइंस थे वो फर्स्टली 1922 में डिस्कवर हुए थे बाय जॉन मार्शल, जो कि एक ब्रिटिशर था और ये ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान डिस्कवर हुआ था। इट वॉज एक्सीडेंटली फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ लैंड। मीन्स कि ये जमीन को खोदने के दौरान जो है एक्सीडेंटली इसके साइंस मिले थे। The signs of Indus Valley have been found first at Mohenjo-daro. This city is situated in district Larkana, Sindh. और इसमें जो है ड्यूरिंग एक्सकवेशन बहुत सारी चीज़ें मिली थी जिनमें ज्वेलरी, बर्तन, स्टैम्प्स, बुल कार्ड्स थी, टॉयज थे और डिफरेंट किस्म के जो एनिमल्स के स्केल्टन्स भी मिले थे। और इसके अलावा जो ज्वेलरी थी वो ज़्यादातर ऑयस्टर शेल से बनाई गई थी। वो जो समंदर के किनारे आपको शेल्स नज़र आते हैं ना, उनसे बनी हुई थी। और इन तमाम चीज़ों को स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया था कि सिविलाइजेशन जो है ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है और यहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल कैसा था और इनका कल्चर ट्रेडिशन कैसा था। Okay, now let's talk about the second important city of Indus Valley. अच्छा, ये कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की एक्सकवेशन के दौरान यहाँ पर मिली थी। और अब बात करते हैं हड़प्पा की। इट इज सिचुएटेड नियर साहिवाल, पंजाब।
Harappa is the second most important city of Indus Valley civilization. From here, a lot of assets have been discovered of this civilization. Solid clay utensils, seals, and a system of measures and weights are included in it. Seals were made of solid clay, silver, and copper. The picture of elephant and hum bull are more prominent. Tools were made by bronze. Resemblance has been found in objects which have been found in both cities because both cities were the part of Indus Valley civilization. अब इस सिटी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कवर हुई थी जिसमें मिट्टी के बर्तन हैं, वेट और मेजरमेंट के सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट था. इसके अलावा हम बुल्स और जो है कार्ट्स, बुल कार्ट्स मिली थी यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली थी जो मोहनजोदारो से भी डिस्कवर हुई थी. तो इन तमाम चीज़ों के मिलने से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया था कि ये दोनों जो जगह हैं वो एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट है, और वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक. अब बात करते हैं होमवर्क की. तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है. सो यू हैव टू लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 in your neat copies. Okay, till then, Allah Hafiz.